Welcome to Shripriti Education Online Classes. So today we are going to start a lecture in data warehouse. So today we are going to see data mart in data warehouse. So what is data mart? Data mart is highly structured repositories which stores the data and manage the data until it is needed. ये एक स्ट्रक्चर वे में होता है डेटा मार्ट एक बहुत ही ज़्यादा रिपोजिटरी मीन्स जैसे डेटा वेयर हाउस होता है ना वैसे ही स्ट्रक्चर रिपोजिटरी होती है डेटा मार्ट की भी जो स्टोर करता है डेटा को एंड ऑल्सो मैनेज द डेटा until it is needed जब तक कि इसकी ज़रूरत ना पड़े. डेटा मार्ट is used to fulfill the request for the specific data. कुछ some type of specific data की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है or the data which is used for the purpose of the business functions also. And the main aim of the data mart is to divide or to partition the data from the data warehouse into smaller sets to provide the easier data access for the consumer. That means जो main base होता है that is data warehouse and it divides the data warehouse and also say that partition the data that is called as a data mart. मतलब कि इसका जो मेन एम होता है डेटा मार्ट का वो डेटा वेयर हाउस को पार्टीशन कर देता है डेटा में और स्मॉलर डेटा वेयर हाउस को स्मॉलर सेट्स टू प्रोवाइड इजियर डेटा एक्सेस फॉर द कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को दे देता है स्मॉलर सेट्स में डेटा को डिवाइड करके. सपोज and a data mart can be created from an existing data warehouse. As I told you कि एक existing data warehouse होता है. With the help of this existing data warehouse, a data mart can be created. Data mart follows a top-down approach or from other sources such as internal operation system or external data. जैसे कि data warehouse collect the data from the different sources and the data that is present in the data warehouse, data mart can be created in a structured form. For the purpose of operational manner business functions similar to data warehouse it is relational database. ये relational database होता है that store transactional data को store करता है जैसे कि हमने उसमें OLTP वगैरह पढ़ा था. Time value, numerical order, reference to one or more objects in columns and rows make it easy to organize and access. That means कॉलम एंड रोज में डेटा होता है रिलेशनल डेटाबेस है दैट्स वाई वहाँ पे कॉलम और उसमें रोज में डेटा स्टोर रहता है मेकिंग इट इजी टू ऑर्गेनाइज दैट्स वाई द डेटा इज इजीली एक्सेसिबल होता है टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस द डेटा. On the other hand, separate business units may be create their own data marts. जो business units होते हैं बड़े-बड़े organization होते हैं they also create their own data marts based on their own data requirement. Whatever the requirement they have, they create. If business needs dictate multiple data marts can be merged together to create a single data warehouse. अगर multiple data marts can be merged together अगर एक साथ merge हो जाते to create a single data warehouse तो एक single data warehouse create हो जाता है. This is the bottom up development approach. This is called as the bottom up development approach but the data mart follow the top down approach. In other words, data mart is a combination of two words. As you know that the data mart is the combination of the two words data plus mart. That means it is a market of the data where the data means the information about something and the mart means market. Basically this is a market of data and the data comes from the data warehouse because the data warehouse the data that is present in the data warehouse will be partitioned and can create a data mart and data mart follow the top down approach which spread the data over to different parts for the specific purpose. Structured way में होता है that's why it is data spread कर दिया जाता है spread the data over to different parts for the specific purpose. Here you can see this is the data warehouse that collects the data from the different sources. Okay, so all the data after cleaning loading ETL उसके बाद जो होता है ETL process के बाद यहाँ पे आ गया data. After that data marts created from the existing database में से एक structured data mart create हो गया that is a repository of the data marts. Now as you can see here
1 second. Yeah. So this is a data warehouse. This is a data warehouse which collects the data from the different sources. Now the data is divided. One data mart is created, another data mart is created, then another data mart is created, again data mart is created in an organized and structured manner. So this is a top-down approach. It follows the top-down approach. Now the types of the data mart. Data marts are of three types. One is dependent data mart, independent data mart, second independent data mart, third one is the hybrid data mart. So what is dependent data marts? Dependent data mart is created from an existing enterprise data warehouse. फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा वेयर हाउस है या किसी भी एंटरप्राइज का एक डेटा वेयर हाउस है, सो इट क्रिएट अ सेपरेट डेटा फ्रॉम द एक्सिस्टिंग डेटा वेयर हाउस. तो वो डेटा मार्ट क्रिएट कर देगा उस एक्सिस्टिंग एंटरप्राइज का. is called dependent data mart because it is created from the existing data warehouse. जो existing data warehouse से create किया गया था, that is present in the enterprise. enterprise में था वो डेटा वेयर हाउस, एंटरप्राइज का डेटा वेयर हाउस था, उससे डेटा मार्ट्स बनाए गए. तो वो क्या हुआ, डिपेंडेंट हो गए क्योंकि वो एक एक्सिस्टिंग डेटा वेयर हाउस से क्रिएट किए गए. A dependent data mart is created from an existing enterprise data warehouse. It is a top-down approach that begins with storing all business data in one central location. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो कहाँ पे स्टोर, एक सेंट्रल डेटा पे स्टोर हो जाएगा. that begins with storing all business data in one central location. एक सेंट्रल लोकेशन पे डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा. Then extracts a clearly defined portion of the data. वो क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, the data is extracted clearly portion defined. जो defined clear portion data होगा one needed for analysis. The data that is needed for the analysis purpose, a clearly defined portion of data to be extracted. To form a data warehouse, a specific set of data is aggregated. Data warehouse बनाने के लिए specific set of data को gathered किया जाता है. That formed a cluster from the warehouse, restructured किया जाता है, then loaded to the data mart. फिर उसको data marts में loaded किया जाता है, where it can be queried. जब उसको कहीं queried किया जाता है तभी तो data marts बनते हैं. जब कभी कहीं किसी को जरूरत पड़ेगी, queried होगी उसकी, तभी तो data marts बनेंगे. It can be a logical view. It is a logical view of physical subset of the data warehouse. It is a physical subset of the data warehouse. Now here you can see, as I told you in the previous slide, कि top down approach follow करता है, but this is a dependent data warehouse. The existing data warehouse of any enterprise. ये एक enterprise है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये enterprise है और वहाँ का ये एंटरप्राइज है, ये डेटा वेयर हाउस है. तो वहां का किसी ने रिक्वेस्ट करी कि उसको डिफरेंट डेटा चाहिए, तो ये डेटा मार्ट्स बन गए. एक इस पे एक सेंट्रल रिपोजिटरी पे डेटा मार्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्सन, और जिससे भी क्वेरीड किया है उनके हिसाब से वो डेटा मार्ट्स बन गए. उन्होंने क्वेरीड किया, डेटा क्लियरली डिफाइंड पोर्शन में आके डेटा मार्ट्स अलग अलग ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में हो गए. और वो कहाँ से क्रिएट हुए, डेटा वेयर हाउस है. सो इट सारे के सारे डेटा मार्ट्स किस पे डिपेंडेंट है, डेटा वेयर हाउस पे. ये देखो यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ. इसमें भी हमारे पास तीन होते हैं, एक तो लॉजिकल व्यू होता है, फिजिकल सबसेट होता है और एक ग्रैनुलर डेटा होता है. तो व्हाट इज अ लॉजिकल व्यू? अ वर्चुअल टेबल व्यू दैट इज लॉजिकली बट नॉट फिजिकली. एक वर्चुअल टेबल का व्यू होता है जो कि लॉजिकली होता है but not physically. That is present as logically but not the physically, and separated from the data warehouse. The data that is separated from the data warehouse, virtual, we can call it as a virtual table or the view, that is only the logical, not a physically. एक ऐसा डेटा जो डेटा वेयर हाउस से अलग से क्रिएट किया गया हो, जो सिर्फ लॉजिकली ही हो,
एक लॉजिकल हमने क्रिएट कर दिया कि हाँ ऐसा 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 होगा, एक व्यू है कि जिसका हमने वर्चुअल टेबल बनाई है कि व्यू है, दैट इज द लॉजिकल व्यू, नॉट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है वो कोई। फिजिकली सबसेट क्या होता है, जो डेटा एक्सट्रैक्ट दैट इज फिजिकली, जो फिजिकली डेटा डेटा वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट डेटाबेस बनाया जाता है फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस से। एक फिजिकल वे में, जो फिजिकल वे में डेटा को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस से। ग्रैनुलर डेटा, द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा इन द टारगेट सेट, जो एक लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा होता है, द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा इन द टारगेट सेट इन द डेटा वेयर हाउस सर्व एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल डिपेंडेंट डेटा मार्ट दैट आर क्रिएटेड। अब एक लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा होता है इन द टारगेट सेट में, एक टारगेट सेट है वहां पे एक लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा होता है इन द डेटा वेयर हाउस में, जो सर्व करता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल द डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स दैट आर क्रिएटेड। जो भी सारे के सारे उससे जो डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स हैं उससे जो क्रिएट होते हैं, दैट आर डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स दैट आर क्रिएटेड फॉर दैट सिंगल पॉइंट डेटा वेयर हाउस पे, जिसको टारगेट सेट किया गया था लोएस्ट लेवल पे, उसको बोलते हैं ग्रैनुलर डेटा। और अगर अच्छे से समझिए, एक लोएस्ट लेवल पे एक डेटा है, एक टारगेट सेट है डेटा वेयर हाउस में, जो सर्व कर रहा है एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह, जिससे कि सारे डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। सिंपली डेटा वेयर हाउस है एक एक्सिस्टिंग एंटरप्राइज का, उससे स्ट्रक्चर डेटा मार्ट्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं, क्रिएट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप नहीं, now we come on to the second data mart, that is independent data mart. We have read about the dependent data mart. Now we see what is independent data mart. An independent data mart is a standalone system. एक independent data mart, as the name suggests, is independent, obvious सी बात है कि ये independent data mart होगा, that is not a dependent, and is a standalone system created without the use of data warehouse. Here, data warehouse is not in use, that focuses on one subject area or business function, that only on focus on the subject area or the business function. An independent data mart is a standalone system created without the use of data warehouse that focuses on one subject area or business function, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करता है और बिजनेस फंक्शन पे, विदाउट द यूज ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, डेटा दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज और बोथ प्रोसेस देन लोड टू द डेटा मार्ट रिपोजिटरी। यहाँ पे डेटा वेयरहाउस का कोई यूज नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं डेटा वेयरहाउस से, डेटा मार्ट इंडिपेंडेंटली क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से और लोड कर दिए जाते हैं डेटा मार्ट में, जैसे कि डेटा वेयर हाउस में होता था, यहाँ डेटा मार्ट में डेटा लोड कर दिया जाता है। रिपोजिटरी वेयर इट इज स्टोर अंटिल नीडेड फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, ये तब तक वहाँ पे स्टोर रहता है जब तक कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। नाउ इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट टू डिजाइन, दैट इज नॉट वेरी मच मोर डिफिकल्ट टू डिजाइन द independent data mart and develop because they are beneficial to achieve short-term goals. They are beneficial to achieve the short-term goals, but may become cumbersome to manage. बहुत ही इसको मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही tedious जॉब है इसको मैनेज करना, बिकॉज बहुत लार्ज डेटा हो जाता है और ये एक तो इंडिपेंडेंट है टू मैनेज ईच विथ इट्स ऑन ETL टूल, उसके खुद के ETL टूल्स होते हैं एंड लॉजिक एज बिजनेस नीड एक्सपेंड एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और उसको बहुत ही ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स कर देता है। ट्रांजेक्शन फिर लोड, तो क्या होता है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है इसकी, कम्बरसम प्रोसेस जो बोलते हैं हम उसको, तो कम्बरसम प्रोसेस रहती है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म गोल, बट में बिकम cumbersome to manage each with its own ETL tools, से मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके खुद के ETL टूल्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट करता है, डेटा इज गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आइदर इट इज इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डेटा मार्ट इज हाइब्रिड डेटा मार्ट।
So hybrid data mart combines the data from an existing data warehouse and other operational source system. अब जो हमने हाइब्रिड में हम क्या कहेंगे कि एक तो इंडिपेंडेंट में हमने जो देखा और डिपेंडेंट में हमने जो देखा, तो हाइब्रिड कंबाइन दीज टू टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स। एक तो वो एक्सिस्टिंग डेटा वेयरहाउस में से भी डेटा बना सकता है एंड ऑपरेशनल सोर्स सिस्टम से भी डेटा बना सकता है। इट यूनाइट्स द स्पीड एंड यूजर फोकस ऑफ अ टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या कहते हैं, स्पीड इसकी तरफ इट हैव अ मच मोर फास्टर स्पीड एंड यूजर फोकस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच पे फोकस करता है विद द बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज लेवल इंटीग्रेशन। एंड द बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज लेवल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द बॉटम अप मेथड, बॉटम अप मेथड का इंटीग्रेशन कर देता है, ये इंटीग्रेट कर देता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डेटा मार्ट। अब डेटा मार्ट तो क्रिएट कर लिए, एक बार डेटा मार्ट हमने क्रिएट किया एक्सिस्टिंग डेटा वेयरहाउस से, एंड द सेकंड डेटा मार्ट हमने क्रिएट किया इंडिपेंडेंटली, जिसके खुद के ETL टूल्स थे, एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोसेस करता है, लोड करता है डेटा मार्ट्स बना बना के सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट एरिया जो रहता है उसका, एंड तब यूज किया जाता है उसको जब उसके बिजनेस के लिए, एनालिटिक्स के लिए, फॉर द बिजनेस पर्पस जब उसको नीडेड होती है। ठीक है, जो पर्सन को जो भी है। फिर इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ डेटा मार्ट्स। अब क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डेटा मार्ट्स, क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स डेटा मार्ट्स के। मैनेजिंग बिग डेटा, डेटा मार्ट्स आर यूज्ड टू मैनेजिंग big data and gaining valuable business insights is a challenge all companies face and one that most are answering with a strategic data marts। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेस है फॉर ऑल द कंपनीज जो फेस कर रही हैं कि इनको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डेटा को मार्ट किया जाए। अगर हम इन अदर सेंटेंस में कहें तो मार्टिंग भी कह सकते हैं इसको, डेटा को मार्टिंग, दैट मीन्स पार्टीशनिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, एफिशिएंट एक्सेस है ताकि डेटा का एक्सेस बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। अ डेटा मार्ट इज अ टाइम सेविंग सॉल्यूशन फॉर एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। A data mart is a time saving solution। जो data mart है वो एक time saving solution है for accessing a specific set of data, एक specific set of data को for business intelligence, जो business intelligence की यूज होता है। डेटा मार्ट बहुत टाइम सेविंग होता है, सॉल्यूशन होते हैं फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सके फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस की। इनएक्सपेंसिव डेटा वेयर हाउस अल्टरनेटिव, इसके लिए एक इनएक्सपेंसिव डेटा वेयर हाउस एक अल्टरनेटिव है। जैसे डेटा मार्ट कैन बी एन इनएक्सपेंसिव, जो डेटा मार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव है। एक अल्टरनेटिव टू डेवलपिंग एन एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, दिस इज एन अल्टरनेटिव टू डेवलपिंग एन एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस where required data sets are smaller, जहाँ पे required data set बहुत ही ज़्यादा smaller होते हैं। An independent data mart can be up and running in a week or less। एक independent data mart होता है जो कि can be up, जो up होता है, और running in a week or less, जो run करता है या तो एक week में या उससे कम। Improving इम्प्रूव डेटा वेयर हाउस परफॉर्मेंस, डेटा वेयर हाउस का जब डेटा मार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। डिपेंडेंट इन हाइब्रिड डेटा मार्ट्स कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है डिपेंडेंट इन हाइब्रिड डेटा मार्ट्स बाय टेकिंग ऑन द बर्डन ऑफ प्रोसेसिंग। वो अपना अपना बर्डन ले लेते हैं प्रोसेसिंग पे, क्योंकि जो एक्सिस्टिंग डेटा वेयर हाउस होता है वो डिपेंडेंट डेटा वेयर हाउस एक्सिस्टिंग डेटा वेयर हाउस में से क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें से मार्ट्स अलग हो जाते हैं, मार्टिंग पार्टीशन हो जाता है डेटा का। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा वेयर हाउस पे डेटा का लोड कम हो जाएगा, डेटा हटेगा तो डेटा वेयर हाउस पे लोड कम होगा। हाइब्रिड भी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पे भी हम डिपेंडेंट डेटा भी यूज कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है तो डेटा हाइब्रिड वाला डेटा मार्ट भी हाइब्रिड यूज कर सकता है। प्रोसेसिंग टू मीट, now the to meet the needs of the analyst, जो एनालिस्ट होता है, जो एनालिटिक्स के लिए पर्पस से डेटा मार्ट्स को यूज करता है फॉर द बिजनेस फंक्शंस के लिए, तो उस टेकिंग ऑन द बर्डन ऑफ द प्रोसेसिंग टू मीट द नीड्स ऑफ द एनालिस्ट, जो एनालिस्ट की नीड्स को मीट करता हो। व्हेन डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर प्लेस्ड, अब जब डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स को एक प्लेस कर दिया इन ए सेपरेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एक सेपरेट व्हेन डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर प्लेस्ड in a separate processing facility, this significantly reduce analytics processing cost as well। अब जब डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स को हमने प्लेस कर दिया, आप प्लेस इन अ सेपरेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एक जो डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स है एक सेपरेट फैसिलिटी प्रोसेसिंग में उसको प्लेस कर दिया, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे एनालिटिक्स को प्रोसेसिंग कॉस्ट एज वेल, और एनालिटिक्स की प्रोसेसिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस हो जाती है। नाउ द डेटा मेंटेनेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन ओन एंड कंट्रोल देयर डेटा।
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब डेटा की मार्टिंग हो जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा सब्जेक्ट वाइज डेटा अलग क्रिएट हो जाता है, सारे डेटा मार्टिंग हो जाती है, तो डेटा की मेंटेनेंस इजीली अच्छे से हो जाती है क्योंकि डेटा मार्ट्स स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। सिंपल सेटअप होता है, द सिंपल डिजाइन रिक्वायर लेस टेक्निकल स्किल टू सेटअप, नॉट मच मोर टेक्निकल skills is required. It have a very simple design. Analytics key performance indicator that is called as a KPIs can be easily tracked. Key performance indicators होते हैं कुछ, so वो easily ही tracked हो जाते हैं. Easy entry होती है. Data marts can be building blocks of a future enterprise data warehouse project. जो data marts होता है can be building blocks. Data marts can be a building blocks of a future enterprise data warehouse project होता है. ठीक है, easy entry होती है. Future of data marts is in the cloud. We will consider it in our next lecture. So please stay safe at your home during coronavirus and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. If you want to see the previous videos, so please click onto the I button. Thank you.